Today we turn to Romans chapter 2. आज हम रोमियो अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। I mentioned in an earlier study that in the first chapter of Romans, from verse 18 onwards till the end of the chapter, मैंने पहले के एक अध्ययन में उल्लेख किया था कि रोमियो के पहले अध्याय में विशेषकर वचन 18 से अध्याय के अंत तक Paul is trying to establish the guilt of the godless, immoral sinner. पौलुस परमेश्वर विहीन और अनैतिक पापी के दोष को स्थापित करने का प्रयास करता है। And I mentioned there were two types of sinners in the world. मैंने यह भी बताया था कि संसार में दो प्रकार के पापी होते हैं, Non-religious sinners and religious sinners. अधार्मिक पापी और धार्मिक पापी। Irreligious or non-religious sinners are those who are openly evil and sin and don't make any pretense to be religious or God-fearing or go to any place of worship, nothing. अधार्मिक पापी वे होते हैं जो खुलेआम पाप करते हैं, बुराई में जीते हैं और धर्म या परमेश्वर में होने का कोई ढोंग नहीं करते। वे न तो किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, न ही परमेश्वर का भय मानते हैं। But there is another category of sinner. Now those non-religious, worldly, immoral people are openly identified as sinners. And religious people find great delight in calling them sinners. पर अब एक और प्रकार के पापी हैं, वे धर्म निरपेक्षक सांसारिक अनैतिक लोग जिन्हें खुलेआम पापी कहा जाता है और धार्मिक लोग उन्हें पापी कहकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। You know, in the story of the woman caught in adultery in John chapter 8, where the Pharisees wanted to stone her to death, you see three people there. उदाहरण के लिए यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की घटना को देखे। जब फरीसी उसे पथराव करना चाहते थे, वहां हमें तीन प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। The woman, who is a picture of a godless, immoral person. The Pharisee, who is a picture of a religious sinner. And Jesus, who is a godly person. वह स्त्री जो एक परमेश्वर विहीन अनैतिक व्यक्ति का प्रतीक है, फरीसी जो धार्मिक पापी का प्रतीक है, जो दूसरों की निंदा करते हैं लेकिन स्वयं भी पाप करते हैं, प्रभु यीशु जो एक परम धार्मिक व्यक्ति है। The three different people there. And we need to see the difference between the Pharisee and Jesus. वहाँ तीन अलग अलग प्रकार के लोग हैं और हमें प्रभु यीशु और फरीसी के बीच अंतर समझने की आवश्यकता है। The difference between a religious person and a spiritual person. एक धार्मिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति के बीच में अंतर। A lot of people don't understand that difference. They think religious people are spiritual people. No. कई लोग यह अंतर नहीं समझते। वे सोचते हैं कि जो धार्मिक है वे आत्मिक भी होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। Religious people, like the Pharisee, are most times worse than women caught in adultery. फरीसी जैसे धार्मिक लोग अक्सर उस स्त्री से भी बदतर होते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Because in that story also you find the Pharisees went away condemned, but the woman went away justified, forgiven. उस घटना में हम देखते हैं कि फरीसी दोषी ठहराए गए और चले गए, लेकिन वह स्त्री धर्मी ठहराई गई और क्षमा पाकर चली गई। The Pharisees went away unforgiven, and the woman went away forgiven. फरीसी अक्षमा प्राप्त होकर लौटे, जबकि वह स्त्री क्षमा प्राप्त करके लौटी। Just like the prodigal son. He sits at the father's right hand at the end of the story, and the older boy, who was a religious boy, he's outside the house. यही बात हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी देखते हैं। उस कहानी के अंत में छोटा पुत्र जिसने अपने पाप को स्वीकार किया, पिता के साथ घर के अंदर है, जबकि बड़ा भाई जो स्वयं को धार्मिक समझता था, बाहर खड़ा रह जाता है। So we find that Jesus brought out that distinction very clearly during his ministry. और प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान यह भेद बहुत स्पष्ट रूप से बताया। That those who acknowledge their sin, there was hope for them. But religious people who did not acknowledge their sinful condition, the state of their hearts, they would be lost. जो अपने पाप को मानते हैं उनके लिए आशा है, लेकिन जो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं और अपने दिल की पापमय स्थिति को नहीं पहचानते, वे खो जाते हैं। So in Romans chapter 2, Paul is trying to establish the guilt of the religious sinner. रोमियो अध्याय 2 में पौलुस अब धार्मिक पापी के दोष को उजागर करता है। And he's speaking to Jews in those days, and we could apply these verses to Christians
today who look down on others and saying, we're holy and you fellas are not. पौलुस उस समय के यहूदियों से बात कर रहे थे, पर आज हम इन वचनों को धार्मिकता का ढोंग करने वाले मसीहों पर भी लागू कर सकते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, हम तो पवित्र है, तुम लोग नहीं हो। Romans 2 verse 1, he says, you are without excuse, every man of you who passes judgment. पर रोमियो दूसरे अध्याय पहले वचन में पौलुस बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, इस कारण हे मनुष्य, तू जो दूसरे पर दोष लगाता है, तू निर्दोष नहीं है। For in that you judge another, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, you condemn yourself. उसी में तू अपने आप को दोषी ठहराता है। Because you who judge practice the same things. क्योंकि तू जो दोष लगाता है वही काम आप भी करता है। You remember what Jesus told the Pharisees who wanted to stone the woman caught in adultery? क्या आपको याद है जब फरीसी उस स्त्री को पथराव करने लाए थे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा? He said, he who is without sin among you, let him cast the first stone. प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उस पर पत्थर फेंके। So, you want to throw stones at this woman? Okay, that's what you feel that the Old Testament law teaches. Go right ahead, but अगर तुम महसूस करते हो कि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यह स्त्री दोषी है, तो हाँ, पत्थर मारो, लेकिन let it be the one who has no sin in his life, whose conscience does not convict him about any sin, let him throw the first stone. पहला पत्थर वह मारे जिसके जीवन में कोई भी पाप न हो, जिसकी अंतरात्मा उसे किसी पाप के लिए दोषी न ठहराए। And in the company of other people, perhaps those Pharisees may have pretended that there was no sin in their life and said, okay, there's no sin in my life, I'm going to throw a stone. But in the presence of Jesus, they could not pretend. अगर वे कहीं और होते तो शायद वे फरीसी झूठी धार्मिकता दिखाकर कहते, हम तो निष्पाप है, और पत्थर फेंकने लगते, लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति में वे कोई ढोंग नहीं कर पाए। And they all had to go away. एक एक करके सब लोग चुपचाप चले गए। Let me tell you something, that God is not in the business of throwing stones at other people. मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दूसरों पर पत्थर फेंकने के व्यवसाय में नहीं है। And godly people who are like God also do not throw stones at others. और जो लोग वास्तव में ईश्वरीय है, जो परमेश्वर के समान है, वे भी दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। Stones are thrown by religious people. Those who criticize and condemn others are all religious sinners. पत्थर फेंकने वाले धार्मिक लोग होते हैं। वही लोग जो दूसरों की आलोचना और निंदा करते हैं, ऐसे लोग धार्मिक पापी हैं। So that's what he's saying here. You pass judgment on others, you want to throw stones at them, but you condemn yourself. पौलुस यही बात रोमियो अध्याय 2 में कहता है, तुम दूसरों का न्याय करते हो, पत्थर फेंकना चाहते हो, पर वास्तव में तुम अपने आप को दोषी ठहराते हो। Because even though you may not have externally committed adultery like that woman, in your thoughts, haven't you done it? And we read in John chapter 8, starting with the oldest, they all went away. क्यों? क्योंकि भले ही तुमने उस स्त्री की तरह बाहरी रूप से व्यभिचार न किया हो, पर क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में तुमने वह पाप नहीं किया? यूहन्ना अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि वे सभी चले गए। The oldest Pharisee realized what a lot he had lusted in his mind. बूढ़े फरीसी ने यह एहसास किया कि उसने अपने मन में कितना कामुक विचार किए हैं। How much of adultery he had committed in his mind. कितना व्यभिचार अपने मन में किया है। So before you condemn the adulterer, think of how much adultery you've committed in your thoughts. तो किसी व्यभिचारी की निंदा करने से पहले सोचिए, आपने अपने विचारों में कितना व्यभिचार किया है। Before you condemn the murderer, think of how much anger you've had against other people in your mind. हत्या करने वालों की निंदा करने से पहले सोचिए, आपने अपने मन में दूसरों के लिए कितना क्रोध रखा है। Anger is murder. क्रोध हत्या की तरह है। What about hatred? बैर के बारे में क्या? Hatred is murder, we read in 1 John chapter 3. Whoever hates his brother is a murderer. बैर करना हत्या की तरह है। पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्या करने वाला है। You may look down at people who have killed thousands of people and say, oh, what godless people. But do you know that if you hate one human being, you're in the same category? आप सोच सकते हैं, वे लोग जिन्होंने हजारों लोगों को मार डाला कितने परमेश्वर विहीन है, पर क्या आप जानते हैं, अगर आप किसी एक इंसान से भी बैर रखते हैं
तो परमेश्वर की दृष्टि में आप उसी श्रेणी में आते Maybe it हैं। hasn't come forth, but you are guilty of the same thing in God's eyes. शायद वह पाप अभी बाहर प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन आप उतने ही दोषी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। Because you've got the same seed which is sown in his heart. What's the difference between a seed and a tree? क्योंकि आप वही बीज हो जो किसी हत्यारे के हृदय में बोया गया है, वही बीज आपके हृदय में भी है। बीज और पेड़ में क्या अंतर है? It's just a matter of time. That's all. Just a matter of time. केवल समय की बात है, केवल कुछ समय की बात है। Inside that seed is everything that you finally see in the full-grown tree. बीज में ही वह सब कुछ छिपा होता है जो एक दिन एक पेड़ के रूप में सामने आता है। And so, in the seed of hatred is the tree of murder. बैर के बीज में हत्या का पेड़ छिपा है। In the seed of lusting with your heart is the tree of adultery. मन में कामुक विचार के बीज में व्यभिचार का पेड़ छिपा है। So he says, you practice the same things yourself. इसीलिए पौलुस कहता है, तुम जो दूसरों का न्याय करते हो वही बातें तुम स्वयं भी करते हो। And we know that the judgment of God, Romans 2 verse 2, rightly falls on those who practice such things. और फिर रोमियो 2:2 में लिखा है, परमेश्वर का न्याय उन पर ठीक होता है जो ऐसी बातें करते हैं। See, God's judgment is absolutely right. There's no partiality with him. He doesn't make a distinction between the seed and the tree. परमेश्वर का न्याय पूर्णतया धर्मपूर्ण और निष्पक्ष होता है। वह बीज और पेड़ में कोई भेद नहीं करता। You're guilty. Jesus said, if you lust after a woman in your heart, you've committed adultery. दोनों दोषी है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कामना की दृष्टि डालता है, वो अपने मन में उसके साथ पहले ही व्यभिचार कर चुका है। It's not as bad as physical adultery in the sense that you've not harmed another person. शारीरिक व्यभिचार की तुलना में यह बाहरी रूप से उतना नुकसानदायक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने किसी अन्य व्यक्ति को शायद हानि नहीं पहुंचाई है। In that way, it's better, but you're still guilty. यह इस तरह से बेहतर लग सकता है, लेकिन फिर भी आप दोषी हो। You're still guilty of adultery. Of adultery, stage 1. आप अब भी व्यभिचार के दोषी हो, पहले चरण के, Even if you didn't get up to stage 2. भले ही आप दूसरे चरण तक न पहुंचे हो। So, the judgment of God rightly falls on these things, and he says in verse 3, do you suppose this, O man, that when you pass judgment on others for their external sins, and you practice the same things in your thought life, you think you're going to escape the judgment of God? इसलिए परमेश्वर का न्याय इन बातों पर सही रूप से होता है। रोमियो 2:3 में पौलुस कहता है, हे मनुष्य, क्या तू यह समझता है कि जब तू दूसरों का न्याय करता है और आप भी वही काम करता है, तो तू परमेश्वर के न्याय से बच निकलेगा? No. You're going to get it more because you're condemning the other person. नहीं, तू नहीं बचेगा, बल्कि तुझे और भी कठोर न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने दूसरे को दोषी ठहरा दिया है। Now that fellow is not condemning you. अब वो दूसरा व्यक्ति आप पर दोष नहीं लगा रहा है। The woman caught in adultery didn't condemn the Pharisees. स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया था, उसने तो किसी फरीसी पर दोष नहीं लगाया। So in God's eyes, she was not as bad as those Pharisees were. परमेश्वर की दृष्टि में वह स्त्री उन फरीसियों से उतनी बुरी नहीं थी, Because they were committing the same things in their mind, and on top of that, they were condemning the other person who did it. क्योंकि वे न सिर्फ अपने मन में वह पाप कर रहे थे, बल्कि पाप करने वाले दूसरे व्यक्ति पर दोष लगा रहे थे। And that's very often how Christians are. आज के समय में भी बहुत से मसीही इसी प्रकार के हैं। You do the same things in your mind and you look down on another sinner and condemn him. स्वयं अपने मन में वही पाप करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर उनकी आलोचना करते हैं। Instead of being merciful. Jesus was merciful. Jesus did not condone sin. पर प्रभु यीशु वैसे नहीं थे। प्रभु यीशु दयालु थे, उन्होंने पाप को सही नहीं ठहराया। He did not tell that woman caught in adultery, oh, well, that's okay. We fall always. It's okay. Go away. No. He said, go and don't do this again. प्रभु यीशु ने उस स्त्री से यह नहीं कहा कि तू सही थी, बल्कि उन्होंने कहा, जा और अब से पाप मत करना। Don't do it even once. God hates sin. एक बार भी पाप न करना। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। And God doesn't condone sin. He told that woman, don't sin anymore. परमेश्वर पाप को स्वीकार नहीं करते, न ही उसका समर्थन करते हैं।
उन्होंने उस स्त्री से कहा, जा अब पाप नहीं करना। So, the fact that Jesus did not condemn her does not mean that he condoned what she did. प्रभु यीशु ने उस स्त्री को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन यह भी नहीं कहा कि उसने जो किया वो सही था। So, we're not saying that sin is not serious. Sin is very serious. इसलिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि पाप कोई गंभीर बात नहीं है। पाप बहुत गंभीर है। But it's just as serious in the thoughts that destroys our body as it is on the outside. चाहे यह हमारे मन और विचारों में हो जो हमारे शरीर को नष्ट करता है, या वह बाहरी रूप से किया गया हो। It's something like if you keep leprosy in your skin covered up with long sleeved shirts, that doesn't make the leprosy any better. यह कुछ ऐसा है जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो और वह उसे लंबी बाजू की शर्ट से ढक ले, तो क्या रोग कम हो जाएगा? नहीं। Then the other man who does not wear a long sleeve shirt but whose leprosy is visible, the disease is still working in both people. और एक दूसरा व्यक्ति जो उसी रोग से पीड़ित है, लेकिन उसने उसके रोग को शर्ट से नहीं ढका है, उसका रोग दिखाई दे रहा है। दोनों में बीमारी एक समान काम कर रही है। So concealed sin is no better than open sin. छुपा हुआ पाप उतना ही खतरनाक है जितना कि खुला हुआ पाप। So he says God's been good to you. Verse 4, don't think lightly of the riches, the kindness and forbearance and patience of God, not knowing that the kindness of God leads you to और फिर repentance. रोमियो 2:4 में पौलुस कहता है, क्या तू उसके उपकार, सहनशीलता और धीरज को तुच्छ समझता है? क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव की ओर ले जाती है? Why has God been kind to you that he's not judged you so far? परमेश्वर ने अब तक तुम्हारे साथ भलाई क्यों की है कि अब तक उन्होंने हमारा न्याय नहीं किया है? The purpose is that you might come to क्योंकि repentance. वो चाहता है कि हम मन फिराव की ओर आए। You know, God wants you to repent and to come to him, and that's why he's been long suffering with you and allowed you to live so long doing wrong things, and he's not yet punished you. परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराव करो और उसके पास लौटाओ, इसलिए वह अब तक तुम्हारे साथ सहनशील और धैर्यशील रहा है। उसने तुम्हें इतने लंबे समय तक जीवित रखा है। भले ही तुम गलत कार्यों में लगे रहे, फिर भी उसने तुरंत दंड नहीं दिया। You haven't died. God has been merciful to you. आप अभी तक मरे नहीं हो, यह उसकी दया है। And the purpose of God's kindness is to lead you to repentance. परमेश्वर की भलाई का उद्देश्य यह है कि तुम मन फिराव करो। And that teaches us something also in our preaching the gospel to other people. यह बात हमें सुसमाचार प्रचार में भी सिखाती है। We're not to lead people to repentance by condemning them. हमें लोगों को मन फिराव की ओर लाने के लिए उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। How does God lead people to repentance in verse 4? By his kindness. रोमियो 2:4 कहता है, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव की ओर ले जाती है? Have you ever thought of leading people to repentance through being kind to them? क्या आपने कभी सोचा है कि पापियों और परमेश्वर विहीन लोगों के प्रति दया दिखाकर उन्हें मन फिराव की ओर कैसे लाया जा सकता है? By being kind to sinners and godless people? परमेश्वर विहीन लोगों के प्रति भलाई करके और उन्हें दया दिखाकर। Jesus was kind to that woman caught in adultery, and I'm sure she never did it again. प्रभु यीशु ने भी उस स्त्री के साथ दया दिखाई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और मुझे विश्वास है कि उसने फिर कभी वह पाप नहीं किया होगा। Kindness leads people to repentance. क्यों? क्योंकि दया लोगों को मन फिराव की ओर ले जाती है। But if you're not kind, लेकिन अगर आप दयालु नहीं हो, then and if you don't respond to God's और यदि हम kindness, परमेश्वर की दया का उत्तर नहीं देते, then of course one day we do receive judgment, as it says in verse 5, with our unrepentant heart we're storing up wrath. तो फिर एक दिन जैसा लिखा है, हम अपने अकठोर और अप्रत्यय हृदय के कारण परमेश्वर के न्याय का क्रोध जमा कर रहे होते हैं, For the judgment of God. परमेश्वर के न्याय का। But today God gives us the opportunity to repent. He hasn't punished us yet. He hasn't punished you yet. He invites you to turn to him in repentance for your failures and your sins, and he'll forgive you. पर आज परमेश्वर हमें मन फिराव करने का अवसर देता है। उसने अभी तक हमें दंड नहीं दिया है। वह आज भी हमें बुलाता है, अपने पापों और असफलताओं से लौट आओ और वह हमें क्षमा करेगा।